Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are doing well. Welcome to the summary of the Zoom online class for the subject Science and Level 4. Dear students, today we are going to have two topics. One topic is related to the bones, that how do the bones become weak, what are the factors behind this, and also we are going to study that how can we keep our bones strong and healthy. And the second topic is related to the exercises of this unit, because we have come to the end of this chapter, and we are going to learn about those three topics, those three exercises. First of all, let us start our first topic, that is about the bones, that how the bones become weak. Dear students, the first factor of making the bones weak is that of the age factor. When a baby is born, his bones, they are not fused together, so they are having 300 plus bones. But with the passage of time, when those bones fuse together, then they become harder and they strong, and their number reduces to 206. Later on, when a person becomes young, that is the peak of his youth age, then the bones are very much stronger. He can run, he can walk, he can jump, he can do a lot of exercises, very hard exercises. But as his age becomes higher, he becomes older and older, then the bones, they become weak. This is one of the main factor, that the bones, they become weaker and they can break easily. The reason is that every cell in our body, it has got a specific and particular lifespan. Lifespan means उसकी age, हर एक cell की अपनी age होती है. Similarly, the bone cell, their age is round about from 30 years to 130 years. Like it can last from 30 years age to 130 years, and that is why when a person dies, all his body organs, it deteriorates, with the exception of the bones, because they have a greater lifespan. But as soon as a person becomes weak, so does the bone cells also become weak. And due to this weakness, the older people, आपने उनको देखा होगा, वो ज़्यादातर झुक के चलते हैं. Whenever they are moving, they are walking, they need a support. The reason is that with the passage of time and with the age, their bones become weaker and weaker. Second factor is that why our bones become weaker even in the young age, and even when you are adult, still your bones are very, very weak. The reason is that that person might be having a poor diet. Poor diet का मतलब ये होता है कि वो proper diet, proper ग़िज़ा नहीं लेते होंगे. मतलब जो चीज़ें आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए होती हैं, अगर आप वो चीज़ें अपने डाइट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, so definitely your bones will break easily, they will be fractured easily. Now, what are the things that should be made a part of our life which can make our bones strong and healthy? There are some six things which are here in order to make our bones strong and healthy. The first thing is that boost your calcium intake. इसका मतलब ये है, कैल्शियम एक मिनरल होता है जो कि आपके पास मुख्तलिफ़ खानों में होता है, सब्जियों में होता है. कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि अगर आप फूड में उसको अपना डाइट में बना लेते हैं, उसको प्रॉपर इनटेक इसका करते हैं, तो आपके बोन्स कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बोन्स का जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम है. अब कैल्शियम किन किन चीज़ों में होता है? मोस्टली हमारे पास जितनी भी वेजिटेबल्स होते हैं, जितनी सब्जियां होती हैं, अगर मोस्टली जो कच्ची सब्जियां आप लोग खाते हैं, लाइक टोमेटोज़, लाइक क्यूकम्बर, खीरा जो होता है, प्याज, सलाद के पत्ते एट्सेट्रा, इन सब में कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. सिमिलरली अगर आप मिल्क पीते हैं, मिल्क ऑल्सो हैव गॉट अ लॉट ऑफ कैल्शियम इन इट. सुबह के टाइम और रात के टाइम अगर आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप लेते हैं, तो कैल्शियम इनटेक जो होता है वो आपकी पूरी हो जाती है. एन्जॉय अर्ली मॉर्निंग सनलाइट. सूरज की रोशनी में चलना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसकी मेन वजह ये है कि सूरज की जो रोशनी होती है इसमें विटामिन डी होता है. विटामिन डी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स. आपने सुना भी होगा कि व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न, तो सुबह सवेरे उनको लिटाया जाता है फॉर अ फ्यू मिनट्स इन सनलाइट. द रीज़न इज़ दैट द सनलाइट व्हेन दे स्ट्राइक देयर बॉडीज़, तो उनके बॉडी के अंदर ख़ुद ब खुद विटामिन
डी जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है एंड इट मेक्स देयर बोन्स स्ट्रॉन्गर। नंबर 3 है अवॉइड एक्सेस सॉल्ट। अवॉइड का मतलब होता है परहेज़ करें, गुरेज करें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट खाने से। नमक ज़रूरी भी है, लेकिन अगर इसकी मकदार आप अपने खाने में ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर ये नुकसान देता है एंड मोस्ट पर्टिकुलरली आपके बोन्स को वीक बनाता है। 4th इज़ क्विट स्मोकिंग। कि स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट। मोस्टली एडल्ट लोग करते हैं, ज़ाहिर है किड्स तो नहीं करते, लेकिन स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। स्मोकिंग से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें एक बीमारी ये भी है कि उस बंदे के बोन्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाते हैं और वीक होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि थोड़े से गिरने से भी उनके बोन्स में फ्रैक्चर आ सकता है। नंबर 5 इज़ से नो टू सोडा। सोडा कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, मिरिंडा, पेप्सी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सोडा वाटर कहलाती हैं। ये भी जो होते हैं ख़तरनाक होते हैं। जब ये कोई बंदा पीता है तो इसमें एक एसिड होता है जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये एसिड आहिस्ता आहिस्ता दांतों को और बोन्स को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दांत और बोन्स दोनों वीक पड़ जाते हैं। ड्रिंक लेस कॉफ़ी। कॉफ़ी भी बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, लेकिन इसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन एक केमिकल है जो कि ख़तरनाक होता है, ना सिर्फ बोन्स के लिए बल्कि स्टमक के लिए भी ख़तरनाक होता है। तो कॉफ़ी का इस्तेमाल भी छोड़ देना चाहिए। अब हम आते हैं इस बात पे कि हम अपने वीक बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि यू शुड होल्ड एंड लिफ्ट हैवी डम्बल्स द वे दिस पिक्चर इज़ शोइंग टू यू। नहीं, ये भी एक्सरसाइज होती है कि आप सुबह सवेरे उठ के नाश्ते से पहले थोड़ा सा वॉक कर लेते हो, या फिर डिनर करने के बाद अगेन आप थोड़ा सा वॉक कर लेते हो। इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सरसाइज। सिमिलरली ड्यूरिंग द फ्री पीरियड, ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, व्हेन यू गो आउट, और वो थोड़ा सा टाइम आप अपने गेम्स में उछल कूद करके गुजारते हैं, वो भी एक्सरसाइज है। It's not necessary that you should go to the gym and do that hard exercises, but one should do the exercises. Otherwise उनके जो bones होते हैं फिर वो stiff हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और ज़रा सी movement पे उनमें कड़क की आवाज़ें आने लगती हैं और दर्द शुरू हो जाता है joints में. So one should go for the exercises. कैल्शियम रिच फूड खाने चाहिए। कैल्शियम रिच फूड किस में होते हैं? ऑरेंज जूस में होते हैं, ठीक है। इस तरह से योगर्ट दही में होते हैं। मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। पनीर, मुख्तलिफ़ किस्म के पनीर होते हैं। कॉटेज चीज़ हो गया, मोज़रेला चीज़ हो गया, ये तमाम चीज़ जो हैं दीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। सीरियल्स, सुबह के टाइम नाश्ते में जो दूध मिला के आप खाते हैं वो सीरियल्स, उसमें विटामिन डी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फ़िश, मुख्तलिफ़ तरह के फ़िश होते हैं, सालमन, मैकरल, सार्डिनीज़, ट्यूना, दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। और कुछ सप्लीमेंट्स भी हमारे पास दवाइयों की फॉर्म में विटामिन डी और कैल्शियम मिलते होते हैं। अगर किसी को ये डाइट की चीज़ें पसंद नहीं होती, दे कैन गो फॉर द सप्लीमेंट्स as well. Now let us do some exercises which are on the page number 9. So let's start our first exercise, that is about to choose a correct answer. Number 1 है, which kind of tissue gives shape to the organs and holds them in place? वो कौन सा टिश्यू है जो कि आपके organs को shape देता है? Yes, definitely it's connective tissue. नंबर 2 है, कार्डियक मसल्स मेक अप विच ऑर्गन? देखिए, कार्डियक का वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, तो जब कार्डियक का वर्ड आ गया तो डेफिनेटली इट्स द हार्ट। What are the muscles that perform their jobs without you even thinking about them? वो कौन से मसल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं, आपको सोचने का टाइम भी नहीं देते बल्कि ख़ुद ही वो काम कर लेते हैं? तो वो मसल्स कहलाते हैं वोलंट्री मसल्स। What makes our bones strong? हमारे बोन्स को कौन स्ट्रॉन्ग बनाता है? क्या ये एक्सरसाइज है या कैल्शियम रिच फूड्स है या मिल्क है? डेफिनेटली ये तीनों हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ऑल ऑफ देम। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज़ इन द ईयर। स्टीरअप, उसका नाम क्या है? स्टीरअप। स्टीरअप इज़ द स्मॉलेस्ट बोन विच इज़ प्रेजेंट इन द स्केलेटल सिस्टम, और इसकी लोकेशन हमारे पास कहाँ पे होती है? कान के अंदर, ईयर में। सेकेंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। बोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टिशू। जी बिल्कुल, बोन टिशू की एग्जाम्पल है, और अगर आपको याद हो तो इस टिशू का नाम भी है, एंड दैट इज़ कनेक्टिव टिशू, ठीक है। Which muscles contract and relax when pumping blood around the body? Pumping blood का काम जो होता है वो हार्ट करता है, तो definitely it's cardiac muscles. A place in a vertebrate's body where 2 or more bones meet is a joint.
जॉइंट वो जगह है वर्टिब्रेट की बॉडी में जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मिलते हैं। द टिश्यू दैट joins 2 bones together is known as ligament. लिगामेंट वो टिश्यू होता है जो 2 बोन्स को आपस में होल्ड करके रखती है, मिलाती है और बहुत सख्त होती है। The joint which moves a part of our body in one direction only is known as hinge joint. एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाले जॉइंट का नाम होता है hinge joint। और उस जॉइंट का जो कि सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करती है, मीन्स कि हर तरह के डायरेक्शन में मूव करती है, उसको कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द स्टमक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच मसल्स? येस, इट्स स्मूथ मसल्स, क्योंकि कार्डियक मसल्स हार्ट से रिलेटेड हैं, स्केलेटल मसल्स स्केलेटन से रिलेटेड हैं, लेकिन ये जो स्टमक है ये स्मूथ मसल से रिलेट करता है। द मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद द स्केलेटल सिस्टम टू हेल्प यू मूव। मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम दोनों इकट्ठे काम करके हमें मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। कौन से मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स इन द बॉडी? स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स इन द बॉडी। मैच द कॉलम की तरफ आते हैं। A tissue that holds 2 or more bones together at a movable joint, it is ligament। ठीक है, ये ligament कहलाता है क्योंकि दोनों को मिलाता है। The framework of bones in a body is called, framework of bones क्या कहलाता है? It's the skeleton। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है a group of tissues performing a specific function। tissues के ग्रुप को क्या कहते हैं? organ। A thick sheet of tissues that attaches a muscle to a bone। जो मसल को बोन के साथ मिलाती है वो टिश्यू कहलाती है टेंडन। ठीक है, and the building unit of all living things, it is definitely a cell। Hope you got today's lecture, dear students. We'll meet in the upcoming Zoom online lecture again. Till then, take care.